So we'll start next topic in thermal properties of matter, and that important topic is mode of heat transfer. Mode of heat transfer. हीट ट्रांसफर के कौन कौन से मोड हमारे पास होते हैं, दैट इज वी विल डिस्कस. हीट ट्रांसफर का मीन्स हम लोग एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक हीट को कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं. कौन कौन से मोड है हीट ट्रांसफर के, तो कौन कौन से मोड है हीट ट्रांसफर के? वी हैव थ्री मोड ऑफ हीट ट्रांसफर. फर्स्ट वन इज कंडक्शन. First one is conduction. Second one is convection. Convection, and third one is radiation. Conduction, convection, and radiation. Conduction, convection, and radiation. So first of all, when we discuss about the conduction and conduction, in this mode of heat transfer, heat is transferred by vibration of the medium particle. Medium particle remain at its main position. अपनी मेन पोजीशन पे रहेंगे और अपनी मेन पोजीशन में क्या करेंगे, वाइब्रेट करेंगे. ड्यू टू वाइब्रेशन ऑफ द मीडियम पार्टिकल, हीट विल ट्रांसफर फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, एंड दैट मेथड इज नोन एज कंडक्शन. सो इन दिस हीट ट्रांसफर बाय हीट ट्रांसफर बाय vibration of medium particle, vibration of medium particle. मीडियम पार्टिकल्स का वाइब्रेशन होगा, उससे हीट क्या होगी, ट्रांसफर होगी. दैट इज द मेथड ऑफ कंडक्शन. कौन सा मेथड है बेटा, ये कंडक्शन का मेथड. ठीक है. जैसे हमारे पास ये जो होता है नॉर्मली किस में होता है, नॉर्मली इन सॉलिड मीडियम. किस में होता है ये, सॉलिड सब्सटेंस के अंदर ऐसा होता है. सॉलिड के अंदर हीट ट्रांसफर होती है ड्यू टू कंडक्शन. किससे होगी, कंडक्शन से. लेट वी हैव अ कंडक्टर ऑफ लेंथ L and area of cross section of this conductor is A. Length L, कंडक्टर की लेंथ कितनी है बेटा, L, and area of cross section, this one is A. And here this temperature of the rod, that is T1, this temperature of the rod T2, and we assume that T1 is greater than T2. T1 is greater than T2. We know heat will transfer from higher temperature to lower temperature. Heat higher temperature से कहाँ जाएगी, lower temperature में. So here rate of heat flow, not heat flow, total heat flow from the point A to point B या point X to point Y ले लेते हैं. So that Q, delta Q directly proportional to change in temperature T1 minus T2, or we can say delta T. Second thing, delta Q directly proportional to area of cross section. Third thing, heat transfer by conduction, delta Q directly proportional to delta T, time for which heat flow. And fourth thing, delta Q directly proportional to 1 upon L, means inversely proportional to length. So heat flow from one end to other end in method of conduction depend on change in temperature, area, time, and length. When we write all four equations at a time, that means delta Q equal to A, not directly proportional to A, T1 minus T2 into delta T upon L. This is the total heat transfer by conduction. Now
डेल्टा क्यू इक्वल टू के ए T1 माइनस T2 डेल्टा T अपॉन L. This is the total heat flow from point A X to point Y. What is the K? K conduction constant. K क्या है? Conduction constant. समझ में आ गई बात? K क्या है? Conduction constant. ठीक है? यहां पे एक चीज आती है कंडक्शन करंट. कंडक्शन हीट करंट बोल सकते आप लोग. हीट करंट. What you mean by heat current means amount of current, amount of heat flow per second. Amount of heat flow per second. Amount of heat flow per second. Amount of heat flow per second, that is known as the conduction current. क्या बोलते हैं बेटा इसको? कंडक्शन करंट. इसको रिप्रेजेंट किससे करेंगे? कैसे रिप्रेजेंट करेंगे बेटा? एच से. किससे रिप्रेजेंट करेंगे? एच से. तो व्हाट इज द एच? एच इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी. तो व्हाट इज दी एच? डेल्टा क्यू क्या होता है? एनर्जी. यहां से क्या आ जाएगा मेरे पास? वैल्यू है हमारे पास के ए T1 माइनस T2 इंटू डेल्टा टी अपॉन एल इंटू डेल्टा टी. डेल्टा टी से डेल्टा टी क्या हो गया? कैंसिल. तो एच इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास? के ए T1 माइनस T2 अपॉन एल. दिस इज द हीट करंट. ओके, समझ में आ गई बात? कोई समस्या नहीं? कोई समस्या नहीं. दिस इज द मेथड ऑफ हीट ट्रांसफर बाय कंडक्शन. कौन सा मेथड है? कंडक्शन मेथड. ठीक है. ये तो एक्सपेरिमेंट किया होगा किसी साइंटिस्ट ने, उसने बताया कि जो हीट फ्लो, अपन कोई भी रूल पढ़ते हैं तो उसमें क्या पढ़ते हैं कि भाई इसका ऐसा होता है, इसका ऐसे होता है. तो वो हमारे हाथ की बात नहीं होती है. कंडक्शन कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट क्या होता है हर एक इक्वेशन के अंदर? जैसे हम लिखता है 6 पाई, वो स्टोक कांस्टेंट था. तो इस तरह से ये क्या है? कंडक्शन कांस्टेंट है, जो अलग अलग सब्सटेंस के नेचर पे डिपेंड करता है. स्टील का अलग होगा, कॉपर का अलग होगा. ठीक है, समझ में आ गई बात? दूसरा मेथड अपने पास हीट ट्रांसफर का कौन सा है? सेकेंड मेथड, दैट इज कन्वेक्शन. So you know what happen in convection? In convection method of heat transfer, heat is transferred by transfer of the molecule from one place to another place. Means molecule itself transfer from higher temperature to lower temperature. इसमें क्या होगा? molecule खुद क्या होंगे? higher temperature से lower temperature में शिफ्ट होंगे. पहले वाले में क्या था? कंडक्शन के अंदर जो हमने कंडक्शन पढ़ा, उसके अंदर मोलिक्यूल अपनी जगह पे क्या, जैसे यहाँ पे एक अपने पास रोड है स्टील की. स्टील की एक रोड है, इसको आप यहाँ से गर्म करोगे, ऐसे एक मोमबत्ती लगा दी यहाँ पे, मान लीजिए आपने क्या लगा दी? मोमबत्ती. तो यहाँ से इसका गर्म करना शुरू करो, हीट यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हो जाएगी अपना आप. हीट ट्रांसफर हुई कि नहीं हुई? अब इसके अंदर मीडियम के पार्टिकल अपनी मेन पोजीशन में वाइब्रेट कर रहे हैं. केवल वाइब्रेशन से एनर्जी एक दूसरे को ट्रांसफर कर रहे हैं, पर अपनी मेन पोजीशन छोड़ नहीं रहे हैं. मेन पोजीशन जहाँ है वहीं की वहीं रहेगी कंडक्शन में. इसमें क्या होगा? कन्वेक्शन की जब बात करेंगे तो यहाँ पे जैसे वाटर के मॉलिक्यूल अपन ये हीटअप कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? यहाँ पे ये वाटर है मान लीजिए, इसके नीचे हमने इसके नीचे लो लगा दी, आग लगा रहे हैं नीचे. क्या लगा रहे हैं? आग लगा दें. आग, ये आग लगा दी नीचे. क्या होगा आग लगाने से? गर्म होगा. गर्म होने से क्या होगा तो अरविंद? ये जो पार्टिकल, लोअर पार्टिकल है ना, ये जो यहाँ पे पार्टिकल होते हैं, ये क्या करेंगे? ऊपर की ओर मूव करेंगे, और ऊपर के पार्टिकल क्या होंगे? नीचे आएंगे. इस तरह से रेगुलर फ्लो होता रहता है. तो इस टाइप का जो फ्लो होता है, दैट इज कन्वेक्शन. क्या होता है वो? कन्वेक्शन होता है कि नहीं होता है? सो इन दिस मोड ऑफ हीट ट्रांसफर, टू ट्रांसफर हीट, ट्रांसफर हीट मीडियम पार्टिकल
itself transfer from higher to lower temperature. लोअर टेम्परेचर। समझ में आ गई चीज? कोई दिक्कत नहीं। इसमें मीडियम के पार्टिकल खुद एक जगह से दूसरी जगह पे जाएंगे हीट को ट्रांसफर करने के लिए। ये दो टाइप का होता है। एक होता है हमारे पास टू टाइप्स। फर्स्ट होता है नेचुरल कन्वेक्शन। नेचुरल कन्वेक्शन। और दूसरा होता है फोर्स्ड कन्वेक्शन। फोर्स्ड कन्वेक्शन। एक नेचुरल कन्वेक्शन, दूसरा फोर्स्ड कन्वेक्शन। सो इन नेचुरल कन्वेक्शन, you know in what happen in natural convection? Natural convection, particle or naturally transfer from higher temperature to lower without any external force. So particle of medium naturally transfer from higher temperature to lower temperature. समझ में आ गई बात? ठीक है। अब हमारे पास ये कहां पे होता है नेचुरल कन्वेक्शन? ये अपने पास दो टाइप का हम लोग नेचुरल कन्वेक्शन हम लोग यूज करते हैं, बात करते हैं। तो दो टाइप का नेचुरल कन्वेक्शन आपका बनता है। कौन कौन सा बनता है? एक बनता है सी ब्रिज और एक आपका बनता है लैंड ब्रिज। लैंड ब्रिज एंड सी ब्रिज इसका एग्जाम्पल है। और तीसरा चाहो तो आप इसको बोल सकते हैं ट्रेड विंड भी होता है एक, ट्रेड विंड, या इसको बिजनेस वेव भी बोलते हैं, बिजनेस विंड भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है सी ब्रिज और एयर ब्रिज में? इसमें जो ब्रिज है, जो एयर का फ्लो है फ्रॉम सी टू लैंड होता है। क्या होता है? सी टू लैंड, सी टू लैंड। जब आपके पास लैंड का टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है, लैंड का टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है, तो सी का टेम्परेचर कम है, तो लैंड के जो मॉलिक्यूल्स है वो ऊपर उठ जाएंगे। तो जो हवा है उस समुद्र से कहाँ की ओर आएगी? लैंड की तरफ आएगी। कहां तरफ आएगी? लैंड की तरफ फ्लो करेगी। ठीक है। अब अपने पास लैंड ब्रिज में क्या होगा? लैंड टू सी एयर फ्लो। ट्रेड विंड क्यों बोलते हैं इनको? क्योंकि एक पर्टिकुलर सीजन के अंदर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में विंड क्या होती है? फ्लो होती है। इसीलिए उसको क्या बोलते हैं? वो जो पहले के जमाने में क्या होता था, ये शिप्स के मूवमेंट में हेल्प करती थी। जो एक कंट्री से दूसरी कंट्री बिजनेस करना है तो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर वो इस कंट्री से उस कंट्री माल को लेकर जाते थे और दूसरे टाइम पीरियड के अंदर उस कंट्री से वापस इस कंट्री में लेकर आते। तो वो जो विंड होती थी वो एक फिक्स डायरेक्शन में फ्लो होती थी उस सीजन के अंदर। तो वो आपने देखा होगा पहले के जहाज होते उनके बीच में बड़े बड़े से पर्दे लगे होते थे। ठीक है, ऐसे होती ना। तो वो उनको एक फिक्स डायरेक्शन में विंड के चलने के कारण वो उनको चलने में हेल्प करती थी। क्या करती? हेल्प करती। तो दैट इज द पार्ट ऑफ द नेचुरल कन्वेक्शन। किसका पार्ट था? नेचुरल कन्वेक्शन। वो तो फिर नॉर्मल उनके प्रोसेस होता ही रहता था, वो उनकी हेल्प करती थी। क्या करती है? उनकी मूवमेंट ईजी होता था। मूवमेंट क्या होता था? ईजी होता था। अब तो आजकल तो सब मोटर बोट आ गई है, अब तो वो जमाना गया पहले वाला। तो खास महत्व नहीं रह जाता है। अब देखते हैं हम लोग नॉर्मली जब डे में अंदर अगर बात करें समुद्र के आसपास में, तो डे के अंदर क्या होता है? अर्थ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो वहाँ के मीडियम के पार्टिकल एकदम हाई चले जाएंगे, टेम्परेचर वहाँ हाई हो जाएगा। ठीक है, और समुद्र का पानी ठंडा रहता है, तो जो पार्टिकल्स होते हैं ठंडे पार्टिकल वो किसकी ओर मूव करना चाहेंगे? गर्म की ओर जाएंगे। तो एयर के पार्टिकल कहाँ आएंगे उन पास? ठीक है, तो वो अपने पास कौन सी बनती है? लैंड ब्रिज। समझ में आई बात? इस तरह से वाइस वर्सा हो सकता है, नाइट टाइम के अंदर भी उल्टा हो सकता है। ठीक है।
ये तो हो गया अपने पास किसका मेथड बेटा, कन्वेक्शन का। अब ज्यादा इसमें कन्वेक्शन आपको कुछ है नहीं, दो टाइप। दूसरा जो मेथड अपने पास पूछा पढ़ा हमने, वो कौन सी चीज पढ़ी बेटा, दूसरा हमने बोला फोर्स्ड कन्वेक्शन। कौन सा बोला है, फोर्स्ड कन्वेक्शन। फोर्स्ड कन्वेक्शन में क्या होता है, जो फोर्स्ड कन्वेक्शन है उसके अंदर पार्टिकल्स आर pumped by external force, by external force। जैसे हमारे पास होता है पंपिंग ऑफ ब्लड, पंपिंग ऑफ ब्लड बाय हार्ट। ये क्या करता है, टू मेंटेन बॉडी टेम्परेचर, टू मेंटेन बॉडी टेम्परेचर। ठीक है, बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए हार्ट से पंपिंग होती है, ब्लड को बार बार क्या करता है, सर्कुलेट करता है ना, पंप करता नहीं करता वो, तो अपना आप तो ब्लड फ्लो होता नहीं है, पंपिंग करवानी पड़ती नहीं करनी पड़ती है, तो उसको बोलते हैं कुकिंग ऑफ फूड। कुकिंग ऑफ फूड हम लोग क्या करते हैं, रेगुलर उसको स्टीर करते रहते हैं, करते नहीं करते हैं, स्टीयर करते नहीं करते हैं, चाशनी बनाते हैं, कुछ भी बनाते हो, मिठाई बनाओ, उसमें लगातार क्या करते हैं, उसको स्टीयर करते रह के, ताकि हर जगह हीट का फ्लो इक्वली होता रहे, टेम्परेचर एक जैसा मेंटेन रहे पूरे के अंदर एक जैसा टेम्परेचर मेंटेन रहता है। तो वो कौन सा कन्वेक्शन हुआ, फोर्स्ड कन्वेक्शन। कौन सा हुआ, फोर्स्ड कन्वेक्शन। समझ में आ गई बात अच्छे से। सब्जी में होता है क्यों नहीं होता, सब्जी में वो स्टीयर करते हैं ना बार बार, तो जल जाती है ना। कारण क्या होता है कि अपना आप जो हाई डेंसिटी के पार्टिकल ऊपर उठ नहीं पाते हैं ना, तो नीचे का टेम्परेचर ज्यादा होगा, ऊपर का टेम्परेचर कम है, तो नीचे वाला पार्ट क्या हो जाएगा, जल जाता है। तो फोर्स्ड कन्वेक्शन उसमें करना पड़ता है हमें, टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए, बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, फोर्स्ड कन्वेक्शन। दिस इज द पार्ट ऑफ कन्वेक्शन। नेक्स्ट हमारे पास है थर्ड मेथड, दैट इज रेडिएशन। कौन सा है बेटा, रेडिएशन। So in this mode of heat transfer, heat is transferred by the electromagnetic waves without any medium। इसके अंदर किसी भी टाइप के मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो हीट इज ट्रांसफर तो अपने पास देखिएगा, नेक्स्ट अपन बात कर रहे थे रेडिएशन की। रेडिएशन, so in this mode of heat transfer, heat is transferred by electromagnetic wave। Heat transfer by electromagnetic wave, electromagnetic wave। So this not required any medium, not required any medium, not required any medium। इसको प्रोपोगेट होने के लिए किसी टाइप की मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। वी हैव डिफरेंट काइंड ऑफ रेडिएशन, इंसिडेंट रेडिएशन। तो लेट दिस इज अ surface, here one radiation from the sunlight, from the sun, this is the sun, here radiation come, this is the incident radiation, incident radiation। Here, this radiation may be absorbed by this surface. This radiation may be absorbed. This radiation may be reflect back. This radiation may be transmit or some part absorb. So this is reflected radiation. Reflected radiation. This is the transmitted radiation. Transmitted अलग है. Transmitted radiation. Okay, and this some radiation here absorbed. So absorbed radiation.
तो यहाँ से टोटल जो आ रहा है क्यू आ रहा है रेडिएशन, लेट दिस इज द क्यू आर रिफ्लेक्टेड, क्यू टी दैट इज ट्रांसमिटेड एंड क्यू ए दैट इज एब्जॉर्ब्ड रेडिएशन. तो हियर टोटल रेडिएशन क्यू इक्वल टू क्यू आर प्लस क्यू टी प्लस क्यू ए. So if they ask about the absorbed radiation, the part of the radiation which is absorbed by the surface, part of the radiation which is transmitted by the radiation, that is transmitted radiation, and part of the radiation that is reflected, that is known as the reflected radiation. So if we can say absorption power, you know absorption power. Absorption power equal to क्या होगा? Absorbed radiation अपॉन टोटल रेडिएशन इनटू, या इतना ही बोल सकते हो फैक्टर के फॉर्म में लिख जाएगा. क्या हो जाएगा आपके पास? एब्जॉर्ब्ड रेडिएशन अपॉन टोटल रेडिएशन. ट्रांसमिशन पावर, ट्रांसमिशन पावर that is transmitted radiation upon total radiation, and reflection power, reflection power that is reflected radiation upon total radiation. These are the radiation which we can divide in different form. One very important thing here, the radiation, you know, when any body have some temperature, any body which have some temperature, any body which have some temperature, which have some temperature, some temperature, that means it will emit radiation, it will emit radiation, emit radiation, emit radiation. क्या बोलते हैं इसको? कोई भी बॉडी के अंदर कुछ टेम्परेचर है तो रेडिएशन क्या करती है? इमिट भी करती है. क्या करती है? छोड़ती भी है रेडिएशन. ठीक है. अब यहां पे एक होता है इमिशन पावर, इमिशन पावर, इमिशन पावर, जिसको लिखते हैं ई लैम्बडा. किसे लिखते हैं बेटा? ई लैम्बडा. So what is the emission power? That is at the given temperature, at the given temperature, radiation emitted by per unit area per second for the given wavelength, for the given wavelength, या इन यूनिट वेवलेंथ रेंज. क्योंकि जब अपन किसी भी टेम्परेचर पे कोई भी टेम्परेचर अगर देंगे तो वहां पे हर एक वेवलेंथ का रेडिएशन क्या होता है? इमिट होता है. हर एक वेवलेंथ का रेडिएशन क्या होता है? इमिट होता है. सो एट द गिवन टेम्परेचर, एट गिवन टेम्परेचर, रेडिएशन ऑफ each wavelength will emit, हर एक वेवलेंथ का रेडिएशन क्या होगा? वहां पे इमिट होगा. ऐसा नहीं है कि केवल 5 एंगस्ट्रॉम जो रेडिएशन होता है वो 0 टू लेके इन्फिनिटी वेवलेंथ तक का क्या होगा? इमिट होता. तो ग्राफ आपका कुछ ऐसा बनता है. जो इमिशन एनर्जी होती है, इमिशन एनर्जी, ठीक है, और लैम्बडा की बात करें तो लैम्बडा जो शुरू होता है ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे लास्ट तक ऐसे जाता है. तो एक पर्टिकुलर वेवलेंथ पे जो लैम्बडा इमिशन होता है दैट इज मैक्सिमम, दैट इज नोन एज द लैम्बडा एम. क्या बोलते हैं इसको? लैम्बडा एम. ठीक है. अब यहां पे कि इमिशन पावर क्या होता है कि रेडिएशन एनर्जी, रेडिएशन एनर्जी इमिटेड बाय पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया पर सेकेंड, फॉर गिवन वेवलेंथ, फॉर गिवन वेवलेंथ. डी लैम्बडा बोल सकते हैं हम लोग. क्या बोल सकते हैं इसको? डी लैम्बडा. अगर टोटल एनर्जी निकालनी है, ई टोटल इमीडिएट रेडिएशन, दैट इज क्या होगा?
ई लैम्बडा इंटू डी लैम्बडा, इसका हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं। E इक्वल टू ई लैम्बडा इंटू डी लैम्बडा। ई लैम्बडा इज इमिशन पावर फॉर द गिवन वेवलेंथ, इमिशन पावर फॉर द गिवन वेवलेंथ। समझ में आ गई बात? इमिशन पावर क्या होती है? रेडिएशन एनर्जी इमिटेड बाय पर यूनिट एरिया पर सेकेंड एट फॉर द गिवन वेवलेंथ और फॉर द यूनिट वेवलेंथ रेंज। वी कैन से फॉर द यूनिट वेवलेंथ रेंज, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, फॉर यूनिट वेवलेंथ रेंज, वेवलेंथ रेंज। जब कोई भी टेम्परेचर बॉडी का है तो उसे हर एक वेवलेंथ का रेडिएशन क्या होता है बेटा? इमिट होता है। हर एक वेवलेंथ का रेडिएशन क्या होता है? इमिट होता है। ठीक है, अब यहां पे आता है एक ब्लैक बॉडी। क्या आता है? ब्लैक बॉडी, ब्लैक बॉडी रेडिएशन हम लोग बोलते हैं, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। So what is the black body radiation? What is the black body radiation? So a black body is a body which absorb all the radiation incident on it. A black body is a body which absorb all radiation इंसिडेंट ऑन इट, इंसिडेंट ऑन इट। जब किसी बॉडी पे रेडिएशन आ रहा है तो उन सभी रेडिएशन क्या कर लेती है? एब्जॉर्ब कर लेती है। सभी रेडिएशन क्या कर लेती है? एब्जॉर्ब कर लेती है। मींस एब्जॉर्प्शन पावर, एब्जॉर्प्शन पावर ए एब्जॉर्प्शन पावर क्या होगी बेटा इसकी? 1 होगी। क्या होगी? 1। ठीक है, और हमारे पास इसकी ट्रांसमिशन पावर जो है Q ऑफ T वो क्या होगी? 0। और Q ऑफ R भी कितनी होगी? 0। पर इमिशन पावर 0 अलग होती है, वो मत बोलना यहाँ पे। इमिशन अलग चीज है, ट्रांसमिशन अलग है, रिफ्लेक्शन अलग है। तो यहाँ पे जितना भी रेडिएशन आएगा दैट इज एब्जॉर्ब्ड, दैट इज एब्जॉर्ब। अब यहाँ पे एक चीज और ध्यान देना बेटा, यहाँ पे क्या होता है? ब्लैक बॉडी, आइडियल ब्लैक बॉडी दैट इज फेरी, आइडियल ब्लैक बॉडी दैट इज नोन एज द फेरी। क्या होती है? फेरी है। इन्होंने फेरी ने क्या किया? एक डिजाइन की ब्लैक बॉडी, इस टाइप से एक बॉडी बनाई, पूरी ब्लैक है, इसके बीच में एक होल कर दिया छोटा सा। ठीक है, ये पूरा का पूरा ब्लैक लैपिंग है इसके अंदर, आइडियल ब्लैक लैपिंग है। क्या है? आइडियल ब्लैक लैपिंग है। और इसके बीच वाला पार्ट को जस्ट ऐसे कर दिया इसने, ये परफेक्टली ब्लैक है, एकदम परफेक्टली ब्लैक है। अब इसके अंदर जो भी रेडिएशन आएगा, जो भी क्या आएगा? रेडिएशन आएगा, वो रेडिएशन रे यहां से आई, मान लीजिए इसको, यहां से मल्टीपल इसका क्या होगा? रिफ्लेक्शन होगा। अगर मान लीजिए अब रे एक बार इसमें ट्रैप हो गई तो इसको बाहर कोई भी नहीं निकाल सकता। तो इसका मतलब क्या हुआ? इस बॉडी ने पूरी की पूरी रेडिएशन के अंदर क्या कर लिया? एब्जॉर्ब कर लिया। तो दिस इज द फेरी। ये क्या है? फेरी है। तो इसकी एब्जॉर्प्शन पावर कितनी होगी? एब्जॉर्प्शन पावर 1 हो जाए। कितना हो जाएगा बेटा इसका एब्जॉर्प्शन पावर? 1 हो जाए। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे याद रखना हमें। ये तो पता है कि जो एब्जॉर्प्शन पावर है वो तो 1 हो गया, जिसको हम लोग नॉर्मल लिखते हैं ए लैम्बडा से। क्या लिखते हैं? ए लैम्बडा से। ए लैम्बडा का मतलब होता है कि पार्ट ऑफ द एब्जॉर्प्शन रेडियस, पार्ट ऑफ द रेडिएशन इन द गिवन वेवलेंथ दैट इज एब्जॉर्ब्ड। जो टोटल रेडिएशन है उसमें से कितना पार्ट क्या हो रहा है? रेडिएशन एब्जॉर्ब हो रहा है, दैट इज द एब्जॉर्प्शन पावर। ए लैम्बडा से लिखते हैं। क्या लिखते हैं हम लोग? ए लैम्बडा से लिखते हैं। तो यहाँ पे ए लैम्बडा की वैल्यू 1 है। कितनी है? 1। अब यहाँ पे एक आता है इमिशन पावर। तो इमिशन पावर और एब्जॉर्प्शन पावर की बात करें तो we everyone know that the absorption power of the black body is maximum, but at the given temperature black body also have maximum emission power. For the given temperature, for the given temperature, if a white body and if a black body, and they ask about the emitted radiation, ask about the emitted radiation, then emitted radiation by the black body will be maximum. तो
तो ब्लैक बॉडी एब्जॉर्ब भी ज्यादा करती है और गिवन टेम्परेचर पे रेडिएशन को इमिट भी ज्यादा करती है। इस चीज का ध्यान रखना। तो ए ब्लैक बॉडी हैज मैक्सिमम इमिशन पावर एट गिवन टेम्परेचर ब्लैक बॉडी की इमिशन पावर क्या होती है गिवन टेम्परेचर पे? मैक्सिमम होती है। क्या होती है? मैक्सिमम होती है, जिसको हम लोग लिखते हैं ई लैम्बडा से। क्या लिखते हैं? ई लैम्बडा। यहां से हमारे पास उसमें लिखा था हमारा छोटे ई लैम्बडा से, यहां लिखते हैं कैपिटल ई लैम्बडा से। अब यहां से एक चीज इंपॉर्टेंट और बनती है कि एक फॉर्मूला हम लोग पढ़े इमिसिविटी। क्या पढ़ते हैं? इमिसिविटी। इमिसिविटी क्या होता है बेटा? इट इज द रेशियो ऑफ इमिशन पावर ऑफ द एनी बॉडी विथ रेस्पेक्ट टू ब्लैक बॉडी। इमिशन पावर ऑफ द एनी बॉडी टू ब्लैक बॉडी। तो रेशियो ऑफ इमिशन पावर ऑफ एनी बॉडी विथ ब्लैक बॉडी। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? यह साइन होता है इमिसिविटी का। किसका साइन होता है? इमिसिविटी इक्वल टू ई लैम्बडा अपॉन कैपिटल ई लैम्बडा। ई लैम्बडा अपॉन कैपिटल ई लैम्बडा। तो दिस इज द बेसिक अबाउट द रेडिएशन। ये क्या है? रेडिएशन का अबाउट बेसिक। सो वी हैव डिस्कस्ड 3 मोड ऑफ हीट ट्रांसफर: conduction, convection and radiation. We have discussed different kind of radiation, we have discussed different kind of convection and conduction is simple. ठीक है, तो ये हो गया मोड ऑफ हीट ट्रांसफर। अब हम लोग कल इसके बारे में पढ़ेंगे रेडिएशन के बारे में और आगे। रेडिएशन के अलग अलग लॉ दे रखे हैं, किरचॉफ लॉ, विंड डिस्प्लेसमेंट लॉ, स्टीफन्स लॉ, दैट वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास। सो दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन। सी यू इन नेक्स्ट सेशन।